नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात। दिन भर की ताजा तरीन गतिविधियों के साथ हम हैं हाजिर। खबरों के विस्तार की तरफ लिए चलते हैं आप तमाम दर्शकों को, लेकिन इससे पहले हर रोज की तरह नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक, लिए गए कई अहम फैसले। हो रहा है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, स्कूल की जमीन पर चल रहा है अवैध कोयले का कारोबार। और आसनसोल चैंबर ऑफ कॉमर्स की नई कमेटी ने संभाला पदभार, पदाधिकारियों ने लिए शपथ। अभी हम दिखा रहे थे आपको सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि आसनसोल के कथा हॉल में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे बर्दवान के जिलाधिकारी डॉक्टर सौमित्र मोहन। उनकी अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बैठक में और भी कई अधिकारीगण मौजूद थे। इस बैठक में ये फैसला किया गया कि 1 अगस्त से आसनसोल, शिल्पांचल और आसपास के इलाकों में अवैध ऑटो रिक्शा बंद कर दिए जाएंगे। शहर में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध ऑटो की समस्या से लगता है अब शहरवासियों को निजात मिलेगी। बर्दवान जिला शासक डॉक्टर सौमित्र मोहन की अध्यक्षता में कथा हॉल में आरटीओ बोर्ड की एक अहम बैठक हुई। मैं नहीं दूंगा, ये मेरी जिद है। तो जब तक आप सारे अप्लाई नहीं किए, मैं किसी को तो सब इलीगल रहे, ताकि दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो मैं ये जो सारे अप्लाई कर रखा है, मैं इनका भी रोक के रख रहा हूँ। अगर मुझे एक भी इलीगल ऑटो जो भी अंदाजा आएगा तो हम उसको पकड़ के हम उसको रुकवा देंगे। मतलब इलीगल ऑटो 1 अगस्त तक नहीं चलेगा, हम अलाउ नहीं करेंगे। इस दौरान कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिनके कार्यान्वयन से शहर की ट्रैफिक समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। पूरा मामला ही अभी स्टेट गवर्नमेंट का निर्देश आएगा। मामला केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में, जब तक सरकार की तरफ से कोई नया निर्देश नहीं आता है, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। এই মিটিংয়ে প্রথমে আমরা আসানসোলের যে অটো সমস্যা ছিল সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। আপনাদের মনে আছে আমরা গত 1 মার্চ একটা মিটিং করেছিলাম সব পক্ষকে নিয়ে এখানে, যে আসানসোলে যে 1002 অটো চলছে বেআইনিভাবে, সেটা নিয়ে একটা আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আর গভর্নমেন্ট কাছে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। তো গভর্নমেন্ট সেই প্রস্তাবটা গৃহীত করেছে, করার পর একটা 1870 মতন অটোকে রেগুলারাইজ করার পারমিশন দিয়েছে। সেই নিরিখে আমরা মিটিং করেছিলাম আর সব পক্ষকে একটা নোটিশ করে ডেট দেওয়া হয়েছিল যে 15 মার্চের মধ্যে একটা যারা যারা বেআইনিভাবে অটো চালাচ্ছেন তাদেরকে দরখাস্ত করার একটা সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল তারপরে ভোট চলে এসছে, আমরা যত দরখাস্ত পাওয়ার কথা ছিল আমরা তত পাইনি। আমরা টোটাল 488 মতন অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছিলাম 488, তার মধ্যে কয়েকটা ডিফেক্টিভ ছিল। তো আমরা আজকে এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা এখন যেগুলো 360 মতন যেগুলো ভালো মানে ঠিকঠাক অ্যাপ্লিকেশন ছিল তাদেরকেও আমরা আজকে পারমিট দিচ্ছি না। আমরা একেবারে পারমিট দেব সবার, যখন পর্যন্ত আমরা সবারই অ্যাপ্লিকেশন দরখাস্ত পাচ্ছি না আমরা কাউকেই দেব না। তো এটা আজকে সব পক্ষের সঙ্গে একটা মিটিং করে এটা ঠিক করা হয়েছে যে আগামী 15 জুলাইয়ের মধ্যে অল যারা যারা এখানে অটো চালাচ্ছেন সবাইকে কিন্তু দরখাস্ত করতে হবে আমাদের আরটিও অফিসে। আমরা একটা নোটিশ ইতিমধ্যে করে দিয়েছি আর এই 15 তারিখের মধ্যে তাদেরকে ইন কমপ্লিট অ্যাপ্লিকেশন উইথ অল দ্য রিকুইজিট ডকুমেন্ট ওদেরকে দিতে হবে। তারপরে আমরা আগামী 25 জুলাই 15 জুলাইয়ের মধ্যে আমরা দরখাস্ত পাবো। 25 জুলাই আমরা আবার একটা আরটিএ বোর্ডের একটা স্পেশাল মিটিং এখানেই করব, আসানসোলেই করব। আর তারপরে 31 জুলাইয়ের মধ্যে আমরা এই পুরো প্রক্রিয়া পুরো প্রসেসটা কমপ্লিট করে নেব। আর যারা যারা যতগুলো অটো এখানে চলছে ইরেগুলারভাবে সবাইকে রেগুলারাইজ করে দেওয়া হবে। তারপরে কিন্তু আমরা আসানসোল এরিয়াতে আমরা কিন্তু কোনো বেআইনি বা আসানসোল কর্পোরেশন এরিয়াতে যে কোনো বেআইনি অটো যদি আমরা চলতে দেওয়া যাবে না, ভ্যালিড পারমিট ছাড়া, ভ্যালিড কাগজ ছাড়া। 1 আগস্ট থেকে 1 অগস্ট থেকে কিন্তু আমরা পুরোপুরি বেআইনি অটো দেখলেই কিন্তু আমরা সিজ করব, ব্যবস্থা নেব। কোনো ইলিগাল বেআইনি ইরেগুলার অটো চালাতে দেওয়া যাবে না 1 अगस्त থেকে। तृणमूल कांग्रेस से जुड़े परिवहन कर्मियों के नेता राजू अहलुवालिया तथा पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ये फैसला हुआ कि 1 अगस्त से सभी अवैध ऑटो को सड़कों पर से हटा दिया जाएगा। আমাদের আসানসোল শিল্পাঞ্চলে অটোর যে রুটগুলো ঠিক হয়েছে তার মধ্যে মোটামুটি 500-550 লোক অ্যাপ্লাই করেছিল। তারপর 10 দিন সময় ছিল, তারপরে ইলেকশন নির্বাচন চলে এসেছিল, বিধানসভা নোটিফিকেশন হয়ে গেছিল, সেই জন্য আবেদনগুলো বন্ধ হয়েছিল। আবার
আবার আমাদের আজকে ডিএম সাহেব ব্যাটার দেখেছিলেন 550-এর মধ্যে মোটামুটি 360টা অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকসেপ্টেবল হয়েছে, 128টা যে অ্যাপ্লিকেশন রিজেক্ট হয়েছে তার মধ্যে কারো ড্রাইভিং লাইসেন্স সঠিক নাই বা রিপিক নাই। রিজেক্ট বলে মানে ওরা আবেদন করতে পারে। আমরা কিছু সময় চেয়েছিলাম, যেহেতু রমজান মাস চলছে, আবার আমরা ডিএম সাহেবকে আবেদন করেছি অটোর পারমিটের জন্য, যাতে আমাদের বেকার ছেলেরা পারমিটের জন্য আবেদন করতে পারে, তার জন্য একটা ডেট আমরা ঠিক করতে বলেছিলাম ডিএম সাহেব। তো 15 জুলাই 2016 পর্যন্ত আমরা টাইম পেয়েছি। যারা এখন মতো আবেদন করতে পারেনি আসানসোল শিল্পাঞ্চলের অটো চালকরা, তাদের কাছে আমরা আবেদন করছি। তারা অবিলম্বে ERT অফিস আসানসোলে সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে আবেদন করতে বলছি। 15 তারিখ পর্যন্ত কিন্তু আবেদন নেওয়া হবে। 25 তারিখে ডিএম সাহেব বলেছেন আবার বোর্ড মিটিং হবে, যে আবেদনগুলো জমা হবে তাদের হিয়ারিং হবে, হিয়ারিং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অটো পারমিটগুলো বিলি হবে। এটা হচ্ছে 1 নম্বর। তো আমরা খুব খুশি যে আমাদের সরকার যা বলেছিল বেকারদেরকে আমরা রোজগার দেবো, সেটা কিন্তু আমরা যেটা বলেছিলাম আমাদের সরকার যা বলছে সেটাই করছে, এটা প্রমাণ হয়েছে। তারপরে এই যে টোটো, অনেকগুলো বেআইনি টোটো শোরুম হয়েছে, তারা বেকার ছেলেদের সঙ্গে প্রতারণা করছে, তাদের টোটো বিক্রি করছে, কিন্তু তারা কোথায় চালাবে সেটা ঠিক করে দিচ্ছে না। তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিচ্ছে, টোটো হাতে দিচ্ছে, তারা কিন্তু অনেকগুলো সমস্যার মুখ ওদের ফেস করতে হচ্ছে। সেই জন্য আমরা ডিএম সাহেবকে বলেছিলাম যারা টোটো কিনে নিয়েছেন তাদের জন্য একটা রুট ঠিক করে দিতে হবে। আমরা তাদের জন্য রুট চিহ্নিত করব, যেখানে অটো চলে না সেখানে টোটো চলতে পারে, এরকম অনেক ছোটো রাস্তা আছে। আমরা রুটগুলো চিহ্নিত করব, যাতে যারা টোটো চালাচ্ছেন তাদের रोजगारটাও আমরা নিশ্চিত করতে পারব। उनके परिचालन पर रोक लगा दी जाएगी। साथ ही नए रूट परमिट के लिए 15 जुलाई तक आवेदन करना होगा। आशा की जा रही है कि प्रशासन के इन कदमों से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होगी तथा आए दिन हो रहे संघर्षों और उनसे होने वाली परेशानियों से लोगों को राहत मिलेगी। खास बात आसनसोल। और इस बैठक में ये भी फैसला किया गया कि टोटो की बिक्री नए तरीके से अब नहीं होगी। जो शोरूम्स टोटो की बिक्री कर रही है उस शोरूम्स पर अंकुश लगा दिया जाएगा, वह टोटो की बिक्री नहीं कर पाएंगे, जबकि पुराने टोटो जो बिक चुके हैं वो चलते रहेंगे, ताकि गरीबों के पेट पर किसी तरह का लात नहीं पड़े। इस तरह का फैसला लिया गया। अब देखना यह है कि इस फैसले को कैसे अमल में लाया जा सकता है और कैसे अमल में आता है, देखने वाली बात होगी। कथा हॉल में हुई आरटीओ की बैठक के दौरान टोटो सवारी गाड़ियों पर भी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। जिला शासक ने कहा कि जब तक इन गाड़ियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोई स्पष्ट कानून नहीं बनाए जाते तब तक इनकी बिक्री पर रोक लगी रहेगी। তো আমরা ঠিক করেছি পুরো জেলাতে আরটিও সাহেবকে আজকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে, যেখানে যেখানে আর এডিএম মোটর ভেহিকলকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে যে আগামী 3-4 দিনের মধ্যে তাড়াতাড়ি খুব শীঘ্রই ইমিডিয়েটলি যতগুলো বেআইনি টোটো শোরুম চলছে সবগুলো ইমিডিয়েটলি সিল করার জন্য আমরা ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি। टोटो बेचने वाले शोरूम्स को भी सील कर दिया जाएगा। हालांकि वर्तमान टोटो चालकों को राहत पहुंचाते हुए डीएम ने ऐलान किया कि जो गाड़ियां फिलहाल सड़कों पर चल रही हैं उन्हें नहीं हटाया जाएगा। खास बात आसनसोल। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ जल्दी होंगे हाजिर। जाइएगा मत, नजर रखिएगा खास बात के खास पर्दे पर। डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी, सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज, लॉफ्टी पेंट्स। সিটি বুকস বইয়ের এমন এক দোকান যেখানে আপনি পাবেন আইসিএসসি, সিবিএসসি, ডব্লিউবিবিএসসি, নানান কম্পিটিটিভ এবং লাইব্রেরির সমস্ত রকমের বই, তাও আবার অ্যাট্রাকটিভ ডিসকাউন্টের বিনিময়ে। সিটি বুকসে আমরা আসানসোল ছাড়াও বর্ধমান জেলার অন্যত্র হোলসেল এবং রিটেল দুই পদ্ধতিতেই বই সাপ্লাই করে থাকি। এছাড়াও শিল্পাঞ্চলের বহু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসও আমাদের সাথে যুক্ত। ফোন এবং ইমেলের মাধ্যমে বইয়ের অর্ডার নিয়ে আমরা আমাদের গ্রাহকদিকে বই সাপ্লাই করি।
তাহলে আর দেরি কেন, আজই চলে আসুন সিটি বুকস। আমাদের ঠিকানা সিটি বুকস, এসবি গড়াই রোড, রামসায়ের ময়দান, পার্বতী ভবন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, আসানসোল জেলা হাসপাতালের কাছে। मैं परेशान 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 परेशान। क्या आप ग्रहों से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपके हर काम में बाधा आ रही है? आपके समस्या के समाधान के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही काम करने की शक्ति रखते हैं। लेबोरेटरी में टेस्टेड ओरिजिनल गारंटी युक्त रत्नों के लिए आइए विशु बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। हर रत्न हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद ही आप तक पहुंचता है, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। आप हमारे यहाँ कोई भी रत्न टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको मिलता है ब्राजील पन्ना, सिलोनी गोमेद, पिकपुखराज, नीला, टोपाज, कैटसाई और हर रत्न और उपरत्न। तो याद रखें, पिछले 40 वर्षों से विश्वास का नाम विशु बाबू की दुकान, कृष्णा जेम्स, सिटी बस स्टैंड के सामने, जीटी रोड, आसनसोल। आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत करते हैं और इसके बाद हम आपको खबरों के विस्तार की तरफ लिए चलते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स का ओथ सेरेमनी शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जीते हुए नए पदाधिकारियों ने शपथ ली और नए सिरे से पूरे समर्पण के साथ काम करने का ऐलान किया। इस मौके पर कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों ने गुरुवार रात को शहर के एक होटल में हुए कार्यक्रम के दौरान पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए अपना पदभार संभाला। की उपस्थिति में मैं ये शपथ लेता हूँ अपने पूर्ण योग्यता, अपनी संपूर्ण योग्यता। নতুন কমিটি তৈরি হলো, ভালো লাগছে। আপনারা সবাই এইভাবে দায়িত্ব দিয়েছেন আমাকে, এরকম একটা বড় জায়গায় আপনারা সবাই মিলে চেয়েছেন। আশা করব আপনারা যে আশা রেখে আমাকে এই জায়গাটায় নিয়ে এসেছেন, আপনাদের সবার যেন আশা আমরা পূর্ণ করতে পারি। আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স একটা ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান, অনেক দিন, অনেক পুরনো, অনেক একটা শক্ত একটা জায়গা। এই জায়গাটাকে আরো শক্ত করতে হবে, আরো সুদৃঢ় করতে হবে। আগামী দিনে যেন আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স আসানসোলের যেন সমস্ত ব্যবসায়ীকে সঠিক দিশা দেখাতে পারে, সঠিক রাস্তা দেখাতে পারে। আসানসোল চেম্বার অফ কমার্স যেন প্রত্যেক ব্যবসায়ী, আসানসোলের বুকে যারা ব্যবসা করে যেন তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, এটা যেন আমাদের একটা কাজ হয়। ये कमेटी 2016 से 2018 तक के समयकाल के लिए गठित की गई है। अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, सचिव मनोज साहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णेंदु मुखर्जी सहित सभी पदाधिकारियों ने शपथ ली। खास बात आसनसोल। और हमारे पास एक और खबर आई है कि आसनसोल शहर के 29 नंबर वार्ड में एक जगह है, एक स्थान है जहां स्कूल बनाने का ऐलान किया गया था सरकार की तरफ से, लेकिन वहां अब तक स्कूल भवन का निर्माण नहीं हो पाया, जबकि वहां पे स्कूल के नाम पर सिर्फ एक शौचालय और थोड़े मोड़े काम हुए हैं, जिसकी वजह से वहां अभी तक पढ़ाई का कोई इंतजाम नहीं हो पाया है। इसकी वजह से लोगों में काफी नाराजगी भी है और आपको बता दें कि यहाँ अवैध कोयले का कारोबार भी चलता है इस स्थान पर, जिससे लोग और भी नाराज हैं। नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। सरकार शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इस बाबत कई परियोजनाओं की घोषणा भी की गई। आदर्श विद्यालय योजना भी इन्हीं में से एक है। इस योजना के तहत साल 2014 में सरकार तथा आसनसोल नगर निगम द्वारा 29 नंबर वार्ड इलाके में स्कूल भवन के निर्माण के लिए जमीन दी गई थी, मगर वहां स्कूल तो नहीं बना, पर हाँ, आज इस जमीन पर अवैध कोयले का कारोबार जरूर फल फूल रहा है। पढ़ाई के लिए बना साहब का कहाँ पढ़ाई लिखाई होता है इसमें रसीद पड़ा हुआ है। तो यहाँ हो क्या रहा एक्चुअली? कुछ नहीं हो रहा, ताला लोग है, कुछ नहीं हो रहा। वो स्कूल चल रहा है, जो पुराना स्कूल है वही चल रहा है। तो एक स्कूल के लिए जो जगह दिया गया था वहाँ दिखता है कि कोयला का भी बिजनेस हो रहा है। ये कैसा लगता है बच्चे का पढ़ाओ का ऊपर? बहुत अभी तक फिलहाल कोयला का बिजनेस तो चलिए रहा है, लोग करिए रहा है, लोग अपना कोयला जो भी है गरीब आदमी जीरा खा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी स्कूल तो चलना चाहिए।
स्कूल का बंद करके रखा हुआ। जब नया स्कूल जब ओपनिंग कर दिया, मलायदा ओपनिंग कर दिया, अमरदा जब ओपनिंग कर दिया, उसका तो स्कूल का फायदा उठाना चाहिए ना। उसका तो फायदा उस पर तुर्रा ये कि जमीन पर स्कूल भवन का निर्माण भले ही न किया गया हो, पर रसोई और शौचालय का निर्माण जरूर हो चुका है, जिससे इन अवैध कारोबारियों को सहूलियत हो। उसमें पढ़ाई कैसे होगा? पढ़ाई का उनका तो भवन नहीं है ना, तो किचन बना हुआ है और मैंने लाइटिंग बना हुआ है। उसको इस्तेमाल किया जाता है ना? इस्तेमाल तो अभी नहीं किया जा रहा है यहाँ। मैंने नहीं, क्या वजह क्या? उसका वजह है कि मैंने अब वहाँ जब भवन बनेगा तब उसके बाद ही तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो आगे भवन नहीं बन के आगे लेटरिन किचन क्यों बनाएंगे? इसलिए कि सर्व शिक्षा से जो पैसा आया था, तो भवन निर्माण के पहले जो है वो मेयर साहब बोले थे, जो पहला मेयर साहब थे, कि पैसा लौटाना ठीक नहीं है, तो उसी के लेकर के ही पैसा मिला था, कि पैसा लौटने का बात था। सर्व शिक्षा का जो पैसा था वो लौटने वाला था, इसलिए उसका जो है लैट्रिन बनेगा और उसका जो है आपका रसोई घर बनेगा। दरअसल हमारे देश में भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत जमा ली हैं कि सही देखरेख के अभाव में सरकार की हर योजना धरी की धरी रह जाती है। खास बात आसनसोल। और अगली खबर आपको बता दें कि आसनसोल के रेल पार इलाके में एक बिजली का खंभा काफी जर्जर हालत में है, जिसकी वजह से आसपास के लोग काफी परेशान हाल हैं। बिजली विभाग को इत्तला भी किया गया, लेकिन अब तक इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से लोग काफी नाराज हैं। अब देखना यह है कि कब तक ये निदान मिल पाता है लोगों को। कोई दुर्घटना घट जाए उसके उपरांत कार्रवाई करने से अच्छा है समय रहते समस्या का हल निकाल लिया जाए। आसनसोल के रेल पार्क के 21 नंबर वार्ड अंतर्गत नया मोहल्ला इलाके में एक ऐसी ही समस्या पर मीडिया की नजर पड़ी। यहाँ बिजली का एक खंभा पिछले कई सालों से जर्जर हालत में है। खंभे का निचला हिस्सा पूरी तरह सड़ गया है, कभी भी ये टूट के गिर सकता है। आपको बता दें कि ये खंभा जिस मार्ग के किनारे खड़ा है वो बेहद व्यस्त मार्ग है। स्कूली बच्चों के अलावा बड़ी तादाद में स्थानीय बाशिंदे इसी मार्ग से यातायात करते हैं। समस्या एक तो ये पोल का समस्या है। अच्छा। और एक तो हम लोग का उधर महल नर्सिंग होम बन रहा है, हॉस्पिटल हो रहा है, वहाँ का एक तो पोल जो है वो एकदम सटा हुआ, उसका ज्वाइन हो गया, वो पोल को हटाना, क्रैक हो गया, नीचे से क्रैक हो गया। अच्छा। कभी आंधी तूफान भी आने से हो सकता है गिर जाए। ये जो क्रैक का अवस्था में कितने सालों से, कितने दिनों से? ये करीबन 1 महीना से हो गया। हाँ, इसका था क्रैक, मगर इधर महीना दिन से बहुत ज्यादा फोल्ड होता है। घटना बड़ा घट जाएगा, किसी का घर पर गिर सकता है। कल कॉन्फ्रेंस में जाकर बोला गया। अच्छा, कल बोला गया? हाँ, बोला गया था। जाने का बात था कि आएगा जाकर के बनाएगा। खंभे की इस जर्जर हालत के कारण कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कहा जा सकता है कि स्थानीय निवासी अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरते हैं। खास बात आसनसोल। और अब पश्चिम बंगाल के विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को याद करते हैं। काजी नजरुल इस्लाम याद किए गए अपनी जयंती के मौके पर, और इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रम हुए, कई जगहों पर कार्यक्रम हुए। आपको बता दें कि काजी नजरुल इस्लाम को पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से काफी एहतराम दिया जाता है और उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई है आसनसोल में, और ये काफी लोकप्रिय यूनिवर्सिटी है। काजी नजरुल इस्लाम की जयंती के मौके पर आसनसोल के रविंद्र भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिस आयोजन में काफी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद हुए। विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम की जयंती के उपलक्ष्य पर काजी नजरुल इस्लाम विश्वविद्यालय की तरफ से सांस्कृतिक सेमिनार का आयोजन किया गया था। 3 दिनों तक चले इस सेमिनार का गुरुवार रात को रविंद्र भवन में समापन हो गया। सेमिनार के दौरान विद्रोही कवि के जीवन और उनके कार्यों पर रोशनी डाली गई। खास बात आसनसोल। और अब फिर थोड़ी देर के लिए आपसे इजाजत लेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। नजर रखिएगा खास बात के पर्दे पर, जाइएगा मत, देखिए छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम,
मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 कंपनी। सिटी बुक्स किताबों की एक ऐसी दुकान जहां आपको ICSE, CBSE, WBSE विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव तथा लाइब्रेरी की सभी किताबें अट्रैक्टिव डिस्काउंट पर उपलब्ध होगी। सिटी बुक्स में हम न सिर्फ आसनसोल बल्कि पूरे बर्धमान जिले में होलसेल तथा रिटेल दोनों माध्यमों से ही किताबें सप्लाई करते हैं। इसके अलावा शिल्पांचल के कई अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी हमसे जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, हम फोन और ईमेल के जरिए भी किताबों का ऑर्डर लेकर अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही चलिए आइए सिटी बुक्स। हमारा पता है सिटी बुक्स, SB गोराई रोड, रामचर मैदान, पार्वती भवन, ग्राउंड फ्लोर नियर आसनसोल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हमारा लैंडलाइन नंबर है 034123057773। मोबाइल नंबर 7384594772। जमाना स्मार्ट मोबाइल का है, इसके बिना जिंदगी ठहर सी जाती है। आसनसोल में स्मार्टफोन्स की खरीदारी के लिए एक जाना पहचाना और भरोसेमंद नाम है स्मार्ट चॉइस। स्मार्ट चॉइस, द एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर। यहां हर रेंज के स्मार्ट मोबाइल फोन्स, नॉर्मल मोबाइल फोन्स और मोबाइल एसेसरीज उपलब्ध हैं, और वो भी मुनासिब कीमतों पर। सैमसंग, नोकिया और जियोनी जैसी ब्रांडेड कंपनीज के मोबाइल फोन्स के अलावा दूसरी कंपनीज के मोबाइल फोन्स भी अवेलेबल। हमारे यहां है मोबाइल फोन्स और एसेसरीज का विशाल रेंज, बिल्कुल आपके बजट में। एक्सचेंज ऑफर अवेलेबल एंड ओल्ड मोबाइल सेल एंड परचेज। रिचार्ज फैसिलिटी, हर परचेज पर है अट्रैक्टिव गिफ्ट। आज ही आए हमारे शानदार मोबाइल शोरूम में। हमारा पता है स्मार्ट चॉइस, द एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर एंड मोबाइल सर्विसिंग सेंटर, GT रोड, अपोजिट सिटी बस स्टैंड, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 9333048822, 8927766644। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से जोड़ते हैं आपको खबरों के साथ। आपको बता दें कि आसनसोल नगर निगम की पुअर स्टैंडिंग कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की गई। इस कमेटी की बैठक के दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद थे। नगर निगम से जुड़े हुए और स्टैंडिंग कमेटी से जुड़े हुए काफी तादाद में लोग यहाँ मौजूद थे। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आसनसोल नगर निगम की कार्यप्रणाली को और कुशल बनाने के लिए कई स्टैंडिंग कमेटियों का गठन किया गया है। इन्हीं में से एक है पुअर स्टैंडिंग कमेटी। पार्षद अमीर दा के नेतृत्व में इस कमेटी की एक बैठक हुई। इस दौरान कैसे और गरीब तबके के लोगों को BPL श्रेणी में लाया जाए, इस पर मंथन हुआ। অ্যাকচুয়ালি একটা নতুন কমিটি হচ্ছে পোর ফান্ড কমিটি আমাদের ছিল না, স্টেট থেকে বলেছে যে সেই পোর ফান্ড কমিটি একটা তোলা যাবে। পোর ফান্ড কমিটি এটা বিশেষত্ব হলো আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এরিয়াতে যত গরিব লোক আছে তাদেরকে কীভাবে, যারা উপভোক্তা অ্যাকচুয়াল জিরো প্রভাইডার যারা গরিব লোক তাদের কীভাবে তাদেরকে কাছে আমাদের যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টের যে পরিষেবাগুলো পাওয়া যায় সেগুলো কীভাবে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য একটা কমিটি করা আছে। কমিটির মধ্যে আমরা আছি চারজন, তার সভাপতি আমি, বিনোদ আমার ভাইস প্রেসিডেন্ট। যে এগুলোকে কীভাবে এটা রেক্টিফাই করা যায়, অ্যাকচুয়াল যারা উপভোক্তা যারা সত্যি গরিব মানুষ সেই সব লোকগুলোকে যে কী করে পৌঁছানো যায় সেটা একটা আলোচনা হলো। দ্বিতীয় কথা তাহলে অনেক রকম জিনিস আছে যেগুলো অনেক লোক মারা যায়, অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়, এমনি যারা তোমার পরিবারের যে উপার্জনকারী সেই হয়তো মারা গেল, তার পরিবারে কীভাবে সাহায্য করা যায়, তারা কত টাকা পাবে না পাবে, এইসব ব্যাপার নিয়ে একটা আলোচনা হলো। এবং টোটাল ডেভেলপমেন্ট এরিয়া যেটা স্লাম এরিয়া যেগুলো গরিব বস্তি এলাকা আছে সেই বস্তি এলাকাতে মানুষের যে জল রাস্তাঘাট, কমিউনিটি টয়লেট, কমিউনিটি ল্যাট্রিন,
কমিউনিটি যে বাড়ি বানানো এসবগুলো ভালো কীভাবে আলোচনা করা যায় বলতে করা যায় সেটা একটা টোটাল সাবজেক্ট করে আমরা তো আমরা কমিটি করেছি। और अब एक महत्वपूर्ण खबर फिल्मी दुनिया से आपको दिखा दें। एक फिल्मी खबर, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप सलमान खान और आमिर खान के फैन हैं तो आपको बेहद खुशी होगी कि ये दोनों अभिनेता एक बार फिर से एक साथ एक फिल्म में आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वो एक फिल्म में आए थे अंदाज अपना अपना में, और एक अरसे के बाद ये दोनों फिर से एक फिल्म में काम करने को राजी हो गए हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको। आइए दिखाते हैं पूरा मामला क्या है, ये खास रिपोर्ट। हिंदी फिल्म जगत में परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने जाने वाले आमिर खान इन दिनों फिल्म दंगल की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसी दौरान इन्होंने सलमान खान के साथ फिर से काम करने के सवालों के जवाब दिए। आमिर ने बताया कि वे अंदाज अपना अपना 2 में जरूर काम करना पसंद करेंगे। आपको बता दें कि अंदाज अपना अपना 1994 में रिलीज हुई थी। सर हेलो, आई एम अमर। हेलो अमर। एंड आई एम प्रेम। हेलो प्रेम। अमर प्रेम, अरे क्या बात है, क्या बात है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर लगता है ये पुलिस स्टेशन नया खुला है। बिल्कुल नया है। अच्छा सर, ये दोनों एक मिनट यार बात कर रहे हैं। तुम चुप रहो यार। बिल्कुल नया है, 2.5 महीने के रिकॉर्ड टाइम में हमने खड़ा किया है। सर ये दोनों, अरे यार मैं जानता हूँ ये दोनों अमर प्रेम है। अरे जब बड़े बात कर रहे तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। चुप रहो सर, ये दोनों हर चीज नहीं है यहाँ पे, टेबल नहीं, कुर्सी नहीं, हर चीज नहीं है यहाँ पे। बस एक रिबन काटने वाले का इंतजार है। हाँ? लॉकअप का रिबन काटना पड़ेगा ना। उसके लिए मुझे एक चोर, एक उचक्का, कोई बदमाश, कोई लफंगा चाहिए मुझे। रिबन काटेगा और अच्छा हम लोग चलते हैं सर। अच्छा हम लोग चलते हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। सर थैंक यू सर। इन्हें रिबन। फिल्म में आमिर और सलमान खान के अलावा रवीना टंडन, करिश्मा कपूर भी थे। तेरे पास आके तेरा हो जाऊं, दिल करता है तेरे पास आऊं, तेरे पास आके तेरा हो जाऊं। रस्ते रस्ते गलियों, रस्ते रस्ते गलियों गलियों, कहाँ तक फिरूं मैं दीवाना, अब तो गले है लगाना। राजकुमार संतोषी निर्देशित इस कॉमेडी फिल्म ने दर्शकों को खूब हंसाया था। देखा फिर वही हो गया ना। आइए प्लीज प्लीज, पहले आप। नहीं पहले आप। नहीं आइए ना, आइए ना, पहले आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। पहले आप मैं नवाब साहब की गाड़ी छूट गई थी। बॉबी फिल्म में राज कपूर साहब ने यही बताया है। अब ये गाड़ी ना छूटे इसलिए पहले मैं चलता हूँ, आप लोग बाद में आइए। हाँ अच्छा चलिए 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 प्लीज। आइए आइए। आप करते क्या? जी कुछ नहीं। अच्छा आमिर को उम्मीद है कि फिल्म का सीक्वल भी उतना ही पसंद किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खास बात। आपको बता दें कि खास बात आपकी अपनी आवाज है, खास बात आपका अपना मंच है, आपका अपना स्टेज है, इसलिए खास बात के साथ जुड़े रहें और अपने आसपास घटने वाली घटनाओं की खबरें हम तक पहुंचाते रहें, हम तक सूचनाएं देते रहें, ताकि आपकी सूचनाओं का हम इस्तेमाल कर सकें, खास बात में हम उसको बता सकें, दिखा सकें। आपके तमाम इंफॉर्मेशन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं आज की सुर्खियां। डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक, लिए गए कई अहम फैसले। हो रहा है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, स्कूल की जमीन पर चल रहा है अवैध कोयले का कारोबार। और आसनसोल चैंबर ऑफ कॉमर्स की नई कमेटी ने संभाला पदभार, पदाधिकारियों ने लिए शपथ। दिखा रहे थे आपको सुर्खियों के बाद आपसे लेंगे इजाजत, इसी वादे के साथ कि कल इसी वक्त इसी चैनल पर होगी फिर मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।